اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہاں تغلق ٹاؤن یونین کونسل 19 اور 52 کے سنگم پر تحریک انصاف کے تمام دوستوں کے ساتھ، جس میں ہمارے صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک صاحب، ہمارے ایم پی اے ندیم قریشی صاحب، ہمارے ایم پی اے حاجی جاوید اختر انصاری صاحب، ہماری ضلع کی صدر جناب خالد جاوید وڑائچ صاحب، ہمارے مختلف یونین کونسلز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر صاحبان، ہمارے جتنے منتظمین ہیں، میزبان ہیں، جتنے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتان شہر کا یہ ایک ٹھوس منصوبہ، جس کی لاگت 1 ارب 57 کروڑ روپے ہے، اس کا آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ یہ درینہ مطالبہ تھا اور اللہ کے فضل سے مدنی فلائی اوور کے بننے سے، تغلق ٹاؤن کے اس فلائی اوور کے بننے سے اور ہماری جو وہاڑی روڈ ہے اس کی تعمیر نو سے اس شہر کی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اڈے پہ آنا جانا، یہ بازار جو ہے یہ بدلہ روڈ جو ہے اور یہ سارا جو ٹرک شہر بھی ہے اور ٹرک سٹینڈ بھی ہے، یہ سارا اس سے مستفید ہوگا۔ میں اس پر سب دوستوں کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے خاصی مشکلات تھیں، رکاوٹیں بھی تھیں۔ انشاءاللہ یہ منصوبہ نہ صرف فلائی اوور بنے گا بلکہ فلائی اوور کے دونوں طرف نیچے جو سروس روڈز بنیں گی، تاکہ نیچے سے جو ہمارے جن کے مکان ہیں یا دکانیں ہیں ان کے لیے آنے جانے کے لیے مناسب راستہ بھی مہیا کیا جائے، اور جنہوں نے ڈائریکٹ آگے جانا ہے اور شہر کی جو رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس علاقے کے کاروبار میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہمارے جو مدنی فلائی اوور ہے، گلشن مارکیٹ، وہاں جب فلائی اوور بنا تو آج آپ دیکھیں کہ اس سڑک پر کتنی نئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کتنی نئی پلازے بنے ہیں، بلڈنگیں بنی ہیں، ریسٹورانٹ بنے ہیں، ان لوگوں کو سہولت ملی ہے۔ اسی طرح اس کے بننے سے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس سڑک کی شکل بدل جائے گی، یہاں کی جو نئی انویسٹمنٹ آئے گی، نئی تعمیرات اور اس سے یہاں انشاءاللہ لوگوں کے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں جو استعفوں کی صورتحال چل رہی ہے، تو اس میں یہ بلی چوہے کا کھیل جاری ہے یا واقعی ہی استعفے ہو جائیں گے اور آپ اسمبلیوں میں سے استعفے دے کے یا اسمبلی توڑ کے کیا آپ دوبارہ الیکشن لڑیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی یہ سوچ ہے کہ یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آج آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں، جب سے یہ آئے ہیں ان 8-7 ماہ میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے، سٹاک مارکیٹ میں مندہ آپ نے دیکھا ہے۔ سب سے بڑی جو آپ کی صنعت ہے اس ملک کی جو روزگار مہیا کرتی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ آج بحران کا شکار ہے۔ آج آپ کی جو معیشت کی کیفیت یہ ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی، امپورٹ نہیں ہو سک رہی، کہ جو ضروری ادویات ہیں ان کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور ملک ایک بحران کی کیفیت میں آ چکا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے
कि लोगों पर एतमाद किया जाए, आवाम से रुजू किया जाए। ये पीडीएम की हुकूमत आई थी, एक दावा करके आई थी कि हम 6 महीनों के अंदर, इमरान खान की टीम में तजर्बा नहीं है, हम 6 महीनों के अंदर मईशत को सुधार देंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल देंगे। लेकिन आज कैफियत ये है, पूरी कौम देख रही है कि जब से ये आए हैं मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। कुछ माहिरीन तो ये कहते हैं कि टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आती है, और आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से डॉलर यहाँ से फरार अख्तियार कर रहा है। आपको याद होगा सरकारी मीडिया ने कहा था कि जब डार साहब तशरीफ़ लाए थे वज़ीर ख़जाना, कि डॉलर डार से डर गया। मुझे लगता है कि डॉलर का डार से डर उतर गया है। जिस तेज़ी से डॉलर चढ़ रहा है और रुपए की कदर में कमी आ रही है, इसने एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी है। मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और इससे निमटने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ समझती है वाहिद आईनी और जमहूरी हल नए इंतखाबात हैं। उसके लिए मुझे इमरान खान साहब ने कहा और उनके हुक्म पर मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली को, हमारे जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी तरफ से दोबारा ख़त लिख दिया है कि हम उनके खिदमत में हाज़िर होने के लिए तैयार हैं। हमें वो को टाइम दें, हम इज्तिमाई तौर पर वहाँ पेश हो जाते हैं, और अगर वो हमसे कोई तसल्ली लेना चाहते हैं इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर, तो हम देने को तैयार हैं और हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। हमने ये कहा कि आपने बदनीयती का मुजाहरा किया कि जब हमने इस्तीफ़े दिए तो आपने सिर्फ पंजाब में जो 20 लोग मुनहरफ हुए थे, लोगों ने उन लोटों को मुस्तरद किया था। इन इस्तीफ़ों के बाद भी लोगों ने भरपूर तरीके से इमरान खान का साथ दिया और 75% जब से ये हुकूमत आई है, 75% जितने भी इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी, उनमें तहरीक-ए-इंसाफ को कामयाबी मिली है। आवाम का एतमाद इमरान खान पर है। अब ये लेटेस्ट जो ओपिनियन पोल आया है, उसमें जब हमारी हुकूमत मदाखलत के ज़रिए बर्खास्त की गई थी, तो इमरान खान साहब की तब बकौल उस ओपिनियन पोल के, इसको पकड़ने ज़रा, 31% उनका मकबूलियत का जो था ग्राफ। आज जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ 65% है। क्यों? लोग इनको देख चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफों के चेहरों से उन्हें कोई एतमाद नहीं मिल रहा और वो समझते हैं कि वाहिद हल नए इलेक्शन है। इसलिए इमरान खान ने मशावरत का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और उन्होंने बहुत से अपने मेंबरान से, अपने वज़रा से मशावरत की है। वज़ीर आला पंजाब से मशावरत की है। वज़ीर आला पंजाब ने उनको भरपूर उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है, अपना मैंडेट दिया है। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मैंडेट दिया है कि वो जब चाहेंगे असम्बली को डिज़ोल्व करना, तहलील करना, वो उनके हुक्म पर अमल दरामद कर देंगे। और कल उन्होंने लिबर्टी में उन्होंने एक इज्तिमा रखा है, उसमें वो कोई लाएअमल का ऐलान करेंगे। तहलील का ऐलान करेंगे या कोई तारीख देंगे? मेरे भैया वो कल इंशाल्लाह शाम को आपको पता चल जाएगा। अच्छा शाह साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर मुसद्दक मलिक ने जो बयान दिया है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का है। पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि रूस के हासिल शुदा तेल को रिफाइन किया जा सके।
बेटा एक तरफ हो जाए ज़रा। देखिए बात ये है, बिलावल जरदारी साहब से मेरा पहला सवाल ये है, आपको वज़ीर ख़ारजा बने हुए 7 महीने हो गए। 7 महीनों में आपने सिर्फ गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च किया है। कौम आज आपसे पूछना चाह रही है, दफ्तर आप नहीं बैठते, फाइलें आप नहीं देखते, सिर्फ सरकारी दौरों पर आप, जिनका कोई मुल्क को कोई उसका कोई नताज भी हासिल नहीं हो रहे, कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, आपसे कौम पूछ रही है 1 अरब 75 करोड़ रुपए जो बसीयत वज़ीर ख़ारजा आपके इस मुख्तसर पीरियड में दौरों पर जो खर्च हुआ है उसका हिसाब दें। और जहाँ तक सस्ते तेल का ताल्लुक है, सस्ता तेल इस हुकूमत पर आज कोई एतमाद ही नहीं कर रहा, उनको कौन देगा? आज कोई जिन्होंने वादे किए थे कि हम इनको फंडिंग करेंगे, और मुख्तलिफ ममालिक ने जो वादे किए थे और इन्होंने कहा था कि इतने अरब डॉलर हमने उनका बंदोबस्त कर लिया है, वो डॉलर कहाँ हैं? IMF को जो मुआहदा किया गया था, इस अश्योरेंस से किया गया था कि हमने एक्सटर्नल रिसोर्सेज का हमने बंदोबस्त कर लिया है और इतने वसाइल का बंदोबस्त कर लिया है, वो वसाइल दस्तयाब नहीं हैं। जो नामा रिव्यू होना था IMF का, वो तातुल का शिकार है, कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, और नतीजा ये है कि आज जो है ना वो गोमगो की सूरत हाल है, जिससे मजीद मुल्क को नुकसान हो रहा है। इमरान खान पर कातलाना हमले करना वाजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमें उस पर तशवीश है, और एक GIT बन चुकी है और GIT उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें उम्मीद है कि वो GIT जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगी, और हम चाहेंगे कि वो लोग जो इस हमले के ज़िम्मेदार हैं वो बेनकाब हों। सर, घड़ी के बाद अब 6 अरब रुपए के जेवरात की जो है ना बात वो भी सामने आई है कि उसको 6 अरब के जेवरात 1.5 करोड़ में लेके उसको बेच दिया गया। बात ये है, ये हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ रही है। क्या मुल्क में कोई मसला नहीं है? आप देखें, पिछले 2 माह से घड़ी की बात हो रही है। क्या वजह? महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा, लाकानूनियत की बात कोई नहीं कर रहा। सिंध में जो बारिशों और सैलाब से लोग मुतासरीन थे और ज़बू हाली का शिकार हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के वाक़यात में जो इजाफा हुआ है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जो टमाटर, प्याज और आटे की कीमत है उसकी बात कोई नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पर कई हमले हो चुके हैं, उस पर बात कोई नहीं कर रहा। हत्ता के वज़ीर ख़ारजा वो काबुल तक नहीं जा सके। सबसे अहम हमारा इस वक्त जो वहाँ वेस्टर्न बॉर्डर को पुरअमन रखना पाकिस्तान की ज़रूरत है, उनको इतनी फुर्सत नहीं है। दुनिया जहान उनने फिर लिया, और पड़ोस में जहाँ अमन दरकार है पाकिस्तान को, वहाँ जाने की उनको तौफीक नहीं हुई। शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, कोई धड़ेबंदियों की बात जो है वो सुनने में आ रही है। खुदा महाज की जो पार्टी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अर्ज़ ये है, मेरी राय में प्रोपेगेंडा है, और हमारे जो सरकारी मीडिया है वो इस किस्म के प्रोपेगेंडे करता रहेगा। तहरीक इंसाफ, इमरान खान एक असूली मौक़िफ़ पर खड़े हैं। जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ बेवफाई की, आवाम ने उनका हशर किया है, और आपने देखा है 17 जुलाई को आपने उसका एक अमली मुजाहरा देखा। आज भी जो पार्टी से मुनहरिफ होगा या इमरान खान के फैसलों के बरक्स अपना कोई फैसला करेगा, आवाम अपना फैसला सुना देगी इसको। सर, अगर आपकी पार्टी दोबारा आ जाती है तो मुल्क को इस संगीन बहरान से निकालने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हमारे पास पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ को अगर लोग वोट देते हैं और इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से इमरान खान आते हैं, उनकी पार्टी आती है, तो फिर हम उस किस्म की मनसूबाबंदी कर सकेंगे, उस किस्म की कानून साजी कर सकेंगे,
उस किस्म की पॉलिसीज़ राइज कर सकेंगे जो हम चाहते हुए भी ना कर सके, क्योंकि जो हमारे हलीफ थे वो रास्ते में रुकावट बन जाते थे, किसी न किसी मसलियत को सामने रखते थे, और वो जो कई दफ़ा इनकलाबी इक़दामात इमरान खान उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पाए। हमने उसके लिए मनसूबाबंदी प्लानिंग का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ माशी माहिरीन से कई नशिस्तें हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है जब लोगों का हमें एतमाद हासिल होगा, उस एतमाद की बुनियाद पर हम बिज़नेस कम्युनिटी के एतमाद को बहाल करेंगे। इस वक्त कैफियत ये है कि 88% जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये लेटेस्ट जो एक सर्वे बता रहा है। इंशाअल्लाह हम उस एतमाद को बहाल करेंगे, हम माशी इस्लाहात लेकर आएंगे जिससे कि पाकिस्तान को माशी तौर पर हम मुस्तहकम इंशाअल्लाह करने का पूरा प्लान मुरतब कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे आप क्या समझते हैं, कोई नतीजा निकलेगा या कोई और लायामल अख्तियार करना पड़ेगा? देखिए, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन हमें मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं देती। वो चाहते हैं गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। हम बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं और उनका हमें इरादा ऐसा दिखाई नहीं देता। उनका अपना एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है? हम चाहते हैं इंतखाबात, वो चाहते हैं एहतसाब के केसेस से छुटकारा। उनका एजेंडा है कि जो उनके करप्शन के केसेस हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। आपने देखा बहुत से लोग ड्राई क्लीन हो चुके हैं और बहुत होने के लिए तैयार खड़े हैं, और वो उस अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जो कहते हैं ना, ले तो लाल से काम ले रहे हैं, और कोई संजीदा मुज़ाकरात का अमल जो है उनके साथ शुरू नहीं हो सका। सबलिया तहलील करने में क्यों लीग क्या आपके साथ खड़ी है, और मोने से लाई के बयान आ रहे हैं तो 2 माह लेट कर दिए जाएंगे? आपने देखिए, नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मोनस इलाही साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने कहा हमने ये इख्तियार इमरान खान को दिया है, जब वो फैसला करेंगे हम आमीन कहेंगे। अब उसको आप कोई और रंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे उनके बयानात में कोई ऐसा अभाम दिखाई नहीं दिया। शाह जी, जिस तरह की 3.5 साल में आपको हुकूमत मिली थी, अगर दोबारा इस तरह की हुकूमत मिलती है तो करेंगे या नहीं? इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे मौसर मैंडेट मिले, मेरे पास इतनी अक्सरियत हो कि मैं मुख्तलिफ इकाइयों में और मरकज़ में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सकूं और आवाम के मफाद में उन पॉलिसीज़ का निफाज कर सकूं। उसके बगैर अगर कोई लंगड़ी लूली हुकूमत मिलती है तो उससे लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। अब पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि क्या वो छोटी छोटी गिरोही चीज़ों से बालातर होकर मुल्क के मफाद में कोई बड़ा फैसला करने की सोच रखते हैं। अगर लोगों ने बड़ा फैसला किया तो इंशाअल्लाह मुल्क जो है, जो पटड़ी से उतरा हुआ है, वो पटड़ी पे दोबारा चढ़ जाएगा।